Hello students, welcome to my channel Core Grammar and English Education. So in this video we are going to study a very important chapter which is known as subject and predicate. Okay. So see, you have done this chapter in almost every classes. Okay, like from class 2, 3, 4 only we are doing this chapter. But with every higher class we have to study something new in this chapter. Okay, so I am teaching subject and predicate based on class 5. Okay, this particular video will be suitable for class 5. So let us see what is there in this particular chapter. So I will explain you this chapter in 3 languages, mixture of 3 languages. Okay, sometimes I will tell English, Hindi, Bengali, so that all of you who are watching this video can properly understand it. Okay, तो देखो subject and predicate actually में है क्या. First let us see subject. Subject means the thing about which something is spoken. Okay, about which something is spoken. Okay, so this definition may vary from book to book, from every means in every source the definition may vary, but you have to understand what is subject. Subject मतलब क्या, जिसके बारे में कुछ तुम बता रहे हो. सोचो राम है तो राम के बारे में हम लोग कुछ बताएंगे, तो राम है subject. Now see what is predicate. Predicate means things told about the subject. Okay, now this definition will also vary. Okay, to make it easy I am writing in simple words. तो देखो मैं राम के बारे में कुछ बोलता हूँ. राम is a good boy. Let us first understand with a very simple sentence. Ram is a good boy. So see, this Ram is the person about whom you are talking. So definitely, as I told you, that the person about whom you will talk or the thing about which you will talk, okay, is your subject. So see, Ram is your subject. Okay, और जो तुम इसके बारे में बता रहे हो कि राम क्या है, एक गुड बॉय है. Okay, so this total thing will be a predicate. So this is the basic for subject and predicate, and this thing you all might know. Okay, in class 3, 4 also we have done little bit of subject and predicate. So now in case of class 5 and 6, okay, what new things we are going to study, let us see. So see, in case of subject and predicate, there are some sentences in which we often get confused that which is the subject and which is the predicate. Okay, like see, in case of this one, I am playing cricket. Be very careful, follow to my instructions properly. I am playing cricket. Okay, so see, I is your subject, I am playing cricket is your predicate. Okay, so this thing is clear because the sentence is very simple. But for example, if you get different type of sentences, like for example, let us say like this was your assertive sentence. Okay, so in case of assertive sentence, finding out subject and predicate is very easy. Assertive sentence যখন থাকবে, subject and predicate easily পাওয়া যায়. ঠিক আছে, ওটা generally subjectটা প্রথমেই থাকে assertive sentences. Okay, you will find subject in the beginning. But let us take a different kind of sentence like, what are you doing? So this is an interrogative sentence. Okay, you already know what are the kinds of sentences. Okay, so see, in interrogative sentence you will not find the subject in the beginning, and during this time only many of you might have some problem to solve it.
ओके तो देखो ये सब सेंटेंसेस में जब तुम्हारा माने हम लोगों को निकालना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कहाँ पर है. सो व्हाट आर यू डूइंग इन इंटरोगेटिव सेंटेंस. इसको पहले क्या करो, इसको एक नॉर्मल सेंटेंस में अगर कन्वर्ट करते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो नॉर्मल सेंटेंस में हम लोग पहले किसको लाएंगे, यू. ओके यू आर डूइंग समथिंग समथिंग समथिंग, तो यू जो है यू विल बी योर सब्जेक्ट. सो जब इंटरोगेटिव सेंटेंस रहेगा उसको आंसर करने का कोशिश करोगे तो जो वर्ड सामने आ जाएगा दैट पार्ट विल बी योर सब्जेक्ट एंड दिस टोटल पार्ट विल बी योर प्रेडिकेट. ओके तो और एक चलो इंटरोगेटिव का एग्जांपल देख लेते हैं. हैव यू सीन माई नोटबुक. सो दिस इज ऑल्सो एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. अब देखो पहला वाला सेंटेंस में तो सिर्फ यू था तो इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत इजी लगा कि वी गॉट द यू एज अ सब्जेक्ट. बट यहाँ पर देखो दो चीज है, यू हैव टू थिंग्स, यू ऑल्सो यू हैव, माई नोटबुक ऑल्सो यू हैव. सो द बेस्ट वे एज आई टोल्ड यू, इसको पहले आंसर करो. हैव यू सीन माई नोटबुक, तो इसमें आंसर क्या होगा, आई हैव नॉट सीन या यू हैव नॉट सीन माई नोटबुक. अगर इसको तुम नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हो, हैव यू सीन माई नोटबुक, यू हैव नॉट सीन माई नोटबुक, ऐसे करके कन्वर्ट करोगे तो यू तुम्हारा सब्जेक्ट में आएगा. ओके क्योंकि जब हम लोग इसको असर्टिव में भी चेंज करेंगे सो यू हैव टू यूज यू ओनली एज अ सब्जेक्ट. ओके और ये जो है हैव सीन माई नोटबुक, दिस टोटल थिंग विल बी अ प्रेडिकेट. Okay, always remember one point that predicate will always have the verb. Okay, will always have verb. तो देखो मैं दोनों में दिखा रहा हूँ, इसमें भी तुम्हारा predicate में am verb था, इसमें are doing दोनों verb है, यहाँ पर have seen दोनों verb है. Okay, so the predicate part will always have the verb. Okay so now see we have seen two types of sentences for subject predicate. One we have seen assertive, okay, and the second we saw your interrogative type. Okay तो ये दोनों में कैसे तुमको subject predicate निकालना पड़ेगा ये तो तुम लोगों ने देख लिया है, ठीक है. बट और भी टाइप्स है, जैसे थर्ड टाइप चलो देखते हैं, explanation. Imperative sentence. You already know what is an imperative sentence. अब imperative sentences में क्या होता है, you'll have orders, command. Okay, like this means command, order, request. For example, let us take come here. अब देखो ये जो sentence है come here, ऐसा sentence आ जाने से हम लोग कैसे subject predicate find out करेंगे, ठीक है. कुछ तो दिख नहीं रहा है, come verb दिख रहा है, here दिख रहा है, ठीक है. तो how you will get the subject and which is the predicate. तो देखो imperative sentences में subject is implied. अब subject implied इसका मतलब क्या है, subject यहाँ है लेकिन लिखा नहीं है, तो वो क्या है subject. हमेशा imperative sentence में जो implied subject रहता है वो है you. तो it will be you come here. Okay तो ये जो you है तुमको अलग से लिखना होगा, खुद से वो लिखा नहीं रहेगा, एंड यू हैव टू मार्क इट एज सब्जेक्ट. और ये जो प्रेडिकेट रहेगा कम हियर, इट विल बी योर प्रेडिकेट. ओके तो बोल सकते हो प्रैक्टिकली सेंटेंस में सिर्फ प्रेडिकेट ही दिया हुआ है, सब्जेक्ट यू हैव टू add yourself. Okay and it will be you. This particular thing happens only with imperative sentences only. Okay सब sentences में ऐसा नहीं होता है. Now let us see in case of exclamatory sentences. So exclamatory sentences होने से तब हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है. तो देखो एक exclamatory टाइप ले लेते हैं. तो थर्ड हम लोगों ने क्या सीख लिया, we have seen imperative sentence. Okay now let us take fourth, which is your exclamatory sentence. तो ये जो तुम्हारा क्लास 5 या 6 ऑनवर्ड्स हम लोग को
ये नया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट निकालना सीखना पड़ेगा, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस चलो देखते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क। ध्यान से सुनो, इसमें भी तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो पहले नहीं है, प्रेडिकेट भी इधर उधर बिखरा पड़ा है, ठीक है, इट्स स्कैटर्ड हियर एंड देयर। तो कैसे हम लोगों को करना है? You have already learned transformation of sentences. Okay, so this subject and predicate you can only do after you have done transformation of sentences. तो पहले हम लोगों का exclamatory sentence को assertive में change करना होगा. You don't have to write it in your copy, but you have to do it. If you want, you can do it as a rough work, or you can do it means orally also. तो देखो कैसे, तो orally हम लोग कैसे सोचेंगे? तो मुझे practice है तो I am doing it. तुम लोगों को अभी इनिशियल्स में प्रॉब्लम होगा, इसलिए कॉपी में लिख लो, बेटर है। ओके, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज। तो एज आई हैव टॉट यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सो इट विल बी इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो अगर हम लोग इसमें असर्टिव करते हैं तो क्या हो रहा है? इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। अब इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट विल बी योर इट, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट इधर उधर बिखरा पड़ा था, हम लोगों ने उसको असर्टिव जैसे ही कन्वर्ट कर दिया। असर्टिव में चेंज करने से तुमको सब्जेक्ट बिगिनिंग में मिल जाएगा, और बाकी जो वर्ब से जो रिमेनिंग पार्ट है ये वाला प्रेडिकेट होगा, ठीक है। अब बहुत जन को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर व्हाई यू हैव चोजन इट ओनली एज सब्जेक्ट, ब्यूटीफुल पिक्चर को क्यों नहीं लिए, वो भी तो नाउन था। ओके, बट सी, इसको क्लैरिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट है कि तुम इसको जब कन्वर्ट करोगे असर्टिव में, ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज करके तो तुम नहीं लिख सकते, ब्यूटीफुल पिक्चर व्हाट इट इज ऐसा भी नहीं लिख सकते। तो तुमको फर्स्ट यू हैव टू गेट टू अ प्रॉपर सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। तो असर्टिव में इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर ही तुम लिख सकते हो। ओके, सो व्हेन यू आर राइटिंग इट इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, सो सब्जेक्ट विल बी इट and is a beautiful picture will be your predicate. Okay, तो ये हुआ तुम्हारा फोर्थ वैरायटी, जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस से सब्जेक्ट प्रेडिकेट को फाइंड आउट करना पड़ता है। ओके, वन मोर वैरायटी इज देयर विच इज नॉट बेस्ड ऑन काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वो थोड़ा डिफरेंट है। सो लेट अस सी वंस दैट वन आल्सो। तो फोर्थ हम लोगों ने क्या सीख लिया? We have studied now only exclamatory sentence. Exclamatory sentence के ऊपर सब्जेक्ट प्रेडिकेट निकालना। तो मैंने 4 चीज लिखा है, देखो असर्टिव के ऊपर हम लोग सीखे, इंटरोगेटिव को सीखे, इंपरेटिव को सीखे, एंड वी हैव आल्सो seen how we have to find out subject and predicate in case of your exclamatory sentence. Now see, कुछ सेंटेंस ऐसे स्टार्ट होता है, जैसे ये फिफ्थ टाइप है। ये फिफ्थ टाइप तुम्हारा हेयर और देयर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। देखो कैसा है, ये कोई काइंड्स ऑफ सेंटेंस में नहीं आ रहा है, ये नॉर्मल है। देखो, हेयर इज अ पेन, हेयर इज अ पेन, ठीक है। जब भी ऐसा रहेगा तो देखो हेयर तो सब्जेक्ट नहीं है, बिकॉज सब्जेक्ट कभी भी, कोई भी अगर सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ओके, now this here is not a noun, neither a noun nor a pronoun, ठीक है। तो here is a pen जो है, इसको अगर सोचो there is a pen भी अगर होता है, there is a pen, तो इसको तुम here and there टाइप पकड़ लो। फिफ्थ टाइप जो है here and there टाइप, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, I am saying it for your convenience. ओके, तो देखो there is a pen या here is a pen, तो ये दो सेंटेंस में तुमको जो नाउन दिख रहा है वो सिर्फ पेन ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ओके, सो यू हैव टू कंसिडर दिस पेन एज अ सब्जेक्ट। तो कैसे, इसको अगर थोड़ा उल्टा करके हम लोग देखते हैं, अ पेन इज हेयर, ऐसा अगर सोचते हैं तो अ पेन जो है ये तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही में अ पेन सब्जेक्ट हो जाएगा। इज देयर और इज हेयर, दिस टू थिंग्स विल बी अ प्रेडिकेट। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ some points you have to remember while doing subject and predicate. तो
Listen to these points. तो क्या क्या पॉइंट्स हम लोगों को याद रखना है सब्जेक्ट को मार्क करते वक्त? देखो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. देयर इज, नहीं चलो एक इजी एग्जाम्पल ले लेते हैं. द टॉल डार्क मैन इज माई अंकल. अगर सोचो ऐसा सेंटेंस लेते हैं तो देखो ये तो मैन, तुम लोगों को पहले पता चल रहा है कि मैन तुम्हारा सब्जेक्ट है, ठीक है. तो ये जो है ना द टॉल डार्क, इसको जो डिफाइन कर रहा है, द टोटल थिंग यू हैव टू कंसिडर नॉट ओनली मैन एज द सब्जेक्ट बट द टोटल थिंग एज योर सब्जेक्ट. ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है. मतलब सब्जेक्ट को जो भी एडजेक्टिव्स डिफाइन कर रहा है और एनी आर्टिकल, तो तुमको उसको पूरा सब्जेक्ट में टोटल एज अ होल यू हैव टू टेक इट एज अ सब्जेक्ट. इज माई अंकल जो है वर्ब है, यहाँ वर्ब से जो पार्ट स्टार्ट होगा दैट टोटल पार्ट विल बी योर प्रेडिकेट. ओके, तो अभी बोल सकते हो कि ऐसा टोटल क्यों लेना है, क्योंकि ये जो वर्ड्स है ये मैन को ही डिफाइन कर रहा है. तो मैन, क्योंकि हम लोगों का मैन सब्जेक्ट है, मेन, ठीक है, हेड वर्ड है, ये मैन को बोला जाता है हेड वर्ड. ओके, तो हम लोगों को हेड वर्ड के साथ जो जो चीज़ बाकी है वो सब को लेना है एज अ होल. वी हैव टू कंसिडर द टॉल डार्क मैन एज अ सब्जेक्ट. ओके, आई होप इट्स क्लियर. So that's all what I wanted to explain in this particular video.